মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত आलोक भाग 2 10वीं कक्षा के जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के जो दूसरे पद हैं, पदत्रय जो मीराबाई द्वारा रचित हैं, इस पद को हम लोग आज देखेंगे। आज আমি मीराबाई द्वारा रचित पदत्रय এই কবিতাটোক আমি ভালদৰে চাম। প্ৰথমতে আমি मीराबाईৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। তাৰ আগতে মই তোমালোকক কেইটামান কথা কৈ লওঁ, কাৰণ ইয়াৰ আগত এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ তোমালোকক আমাৰ কবিৰ দাসৰ যিখিনি সাক্ষী আছিলে, হৈছে যিখিনি দোহা আছিলে, সেই দোহা বিষয়ে আমি কৈছিলোঁ বা আমি কবিৰ দাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে কেইটামান কথা তোমালোকে জনা দৰকাৰ যে এই যোনটো কাব্যধাৰা, ভক্তি কাব্যধাৰা হৈছে, ভক্তি কাব্যধাৰা মানে কি, সেই সময়ত কবিসকলে কেৱল ভগৱানৰ গুণগান কৰিছিলে। সেইকাৰণে সেই সময়ৰ কবিতাবিলাকত, কাৰণ সেই সময়ত কোনো সাহিত্যৰ বেলেগ দুসৰি বিধা নিহিতে, মানে ধৰা উপন্যাস বা কাহিনী তেনেকুৱা একো নাছিলে, মানে সেইটো সময়ত কেৱল কবিতা আছিলে। সেইকাৰণে আমি ক'ম যে ভক্তি কাব্যধাৰা, সেই সময়ৰ কবিসকলক ক'ম ভক্তি কাব্যধাৰাকে কবি। তো তেতিয়াহ'লে ভক্তি কাব্যধাৰা আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে জ্ঞানমাৰ্গী শাখা আৰু এটা হৈছে ভক্তি কাব্যধাৰা। জ্ঞানমাৰ্গী শাখা কবিৰ দাসৰ বিষয়ে মই কৈছিলোঁ, হৈছে তাত মানে জ্ঞানমাৰ্গী শাখাৰ সবচে প্ৰমুখ কবি হে আমাৰ কবিৰ দাস। তেওঁ নিজৰ কবিতাবিলাকৰ জৰিয়তে, নিজৰ ৰচনাবিলাকৰ জৰিয়তে জ্ঞানৰ কথাবিলাক কৈছিলে, হৈছে। তাৰ পাছত আমি মীৰাবাইৰ বিষয়ে চাওঁ, তেওঁ হৈছে ভক্তি কাব্যধাৰাৰ কবি। আৰু এই ভক্তি কাব্যধাৰাক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এখিনি হৈছে ৰাম ভক্তি কাব্যধাৰা, এখিনি হৈছে কৃষ্ণ ভক্তি কাব্যধাৰা। ৰাম ভক্তি কাব্যধাৰা কবি, মুখ্য কবি আমি তুলসী দাসক ক'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰ মানে কি হৈছে, ৰাম ভক্তি কাব্যধাৰা কি কৰিছিলে, কবিসকলে কেৱল ৰামকী ভগৱান বুলি মানি তাত কি কবিতা ৰচনা কৰিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক ৰাম ভক্তি কাব্যধাৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰ পাছত হৈছে কি কৃষ্ণ ভক্তি কাব্যধাৰা। কৃষ্ণ ভক্তি কাব্যধাৰাত দুজন কবি আমি পাওঁ, এজন হৈছে সুৰদাস আৰু এগৰাকী হৈছে মীৰাবাই, হৈছে। আৰু এই সুৰদাস আৰু মীৰাবাই হৈছে কৃষ্ণ ভক্তি কাব্যধাৰাৰ কবি। তাৰ মানে সুৰদাস আৰু মীৰাবাই দুয়োজনেই কি কৰিছিলে, এই কৃষ্ণকেই ভগৱান বুলি মানে তেওঁৰ গুণগান কৰিছিলে। মনত ৰাখিবা, সেইকাৰণে আমি মীৰাবাইক আমি ক'ব লাগিব কৃষ্ণ ভক্তি কাব্যধাৰাকে अनन्य कवि सूरदास के साथ। हो गए। तो इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग जैसे कि हमारे जो मीराबाई के बारे में। तेतिहले सब मीराबाई विषय हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास के बाद ही स्थान प्राप्त है। তেতিয়াহ'লে কি কৈছে, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ কৃষ্ণ ভক্তি কাব্যধাৰা, তাত কি হৈছে, মীৰাবাই মহাকবি सूरदासৰ পাছতেই তেওঁৰ স্থান আছে। भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह मीराबाई भजन भी समान रूप से प्रिय रहे हैं। তেতিয়াহ'লে কি পালোঁ আমি, যে सूरदास, तुलसीदास তেওঁলোকৰ পাছতে আমি কি হৈছে, মীৰাবাইৰ ভজনবিলাক খুব এটা मानवবিলাকে, মানে সেই সময়ত मानवবিলাকে जिससे कि विशेष रूप से प्रिय रहे हैं। अपने आराध्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति के कारण आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली। मनत रखा, তেওঁ কি কৰিছিলে, আমি मीराबाई এটা नाम दिया হৈছিলে, সেইটো হৈছে কি कृष्ण प्रेम दीवानी। वो भगवान कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित थे कि उन्हें কৃষ্ণ প্ৰেম দিৱানী বুলি কৈছিলে। তেওঁ ইমানেই তেওঁ ভগৱান কৃষ্ণক মানে কি তেওঁ মানি লৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ কৃষ্ণ প্ৰেম दीवानी। प्रश्न है, ये प्रश्न तुम लोग के है। तो उसके बाद जैसे देखो, उनका जन्म 1498 के आसपास प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेरता प्रांत के कुर्की नामक स्थान में राठौर वंश की মেৰতীয়া শাখা মে হুৱা থা। তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁৰ জন্মৰ বিষয়ে পালোঁ যে ৰাজপুতানেকে অন্তৰ্গত মেৰতা প্ৰান্তকে কুৰ্কি নামক স্থান মে, হৈছে ৰাঠৌৰ বংশ, হৈছে তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে। बचपन में ही माता के निधन होने और पिता राव रत्न सिंह, पिता के नाम क्या थे, राव रत्न सिंह, देवता नाम से राव रत्न सिंह, ऐसे कि युद्ध में व्यस्त रहने के कारण बालिका मीराबाई का लालन पालन अब उनके दादा राव दूदाजी के देखरेख में हुआ। তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে দেখৰেখ মানে তেওঁ চোৱাচিতা কোনে কৰিছিলে, তেওঁৰ ককাক, কোন, ৰাও দুদাজি,
হৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি পালোঁ আৰু বাপেকে যুদ্ধত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, মাকেতো ঢুকালেই আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ককাকে তেওঁ তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে। আৰু এইডোখৰতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে उनके जो दादाजी थे जैसे कि राव दूदाजी, वो बहुत ही कृष्ण भक्त थे, वो एकनिष्ठ कृष्ण भक्त थे। वैसे इसीलिए जैसे कि क्या है, बालिका मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होने लगे थे। তেওঁৰ ককাকৰ পৰাই কৃষ্ণ ভক্তিৰ ভাৱটো তেওঁলৈ আহিছিলে। ओके, सन 1516 में मेड़ता के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष के बाद ही भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया। তেতিয়াহ'লে তেওঁ विवाह হৈছিলে কাৰ লগত? महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र হৈছে কোন আছিলে? कुंवर भोजराज के साथ उसका उनके विवाह हुआ था, लेकिन 7 वर्ष के बाद ही क्या है, उनके पति का निधन हो गया था। तो इसके बाद ही वो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से विलीन हो गई। इसके बाद ही वो पूरी तरह से विलीन हो गई कृष्ण भक्ति में। तो राजघराने की ओर से उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी, परंतु मीराबाई भक्त प्रहलाद की तरह तस से मस नहीं हुई। यहाँ जिसे गलत हो गए, प्रहलाद की इसी तरह तस से मस नहीं हुए। ऐसे प्रसिद्ध है कि द्वारिका धाम में वो श्री रणछोड़ जी के मंदिर में अपने प्रभु गिरधर गोपाल का भजन कीर्तन करते करते सन 1546 के आसपास हुए भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गए। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত মীৰাবাইৰ বিষয়ে পালোঁ। তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ইয়াত প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্নখিনি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, আহিছে তোমালোকৰ ইয়াত পাঠ্যপুস্তকতো আছে। যে প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে যে हाँ या नहीं में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है कि नहीं? हाँ है। ओके, जैसे कि किसके? सूरदास के बाद ही उनका स्थान है। ओके, कवयित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य राधिका थी। हाँ, ये भी है। राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई। हाँ, ये भी है, वो सती नहीं हुई। सती এটা প্ৰথা হৈছে। সতী এটা প্ৰথাকে যেতিয়া মানুহজন ঢুকায়, মানুহজন ঢুকোৱাৰ পাছত কি কৰে, তেখেতৰ পত্নীকো সেই চিতাতে জ্বলাই দিয়া যায়। সেইটো এটা প্ৰথা আমাৰ ইয়াত নাই, কিন্তু ৰাজস্থান সাইডে সেই প্ৰথাটো সেই সময়ত প্ৰচলন আছিল। लेकिन वो तत्कालीन परंपरा, उस समय की जो परंपरा थी, उनका विरोध करते हुए सती नहीं हुई। तो ये सही है। तो मीराबाई अपने को श्री कृष्ण जी के शरण कमल में पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाए। हाँ, ये गलत है, वो पूरी तरह से समर्पित हो गए थे कृष्ण भक्ति में। तो कृष्ण भक्ति ते संपूर्ण रूपे समर्पित हो गए। তাৰপিছত এইটো ये भी सही है, मीरा ने सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण दिया है। एक कवितात আমি পাইছোঁ তেওঁ আমন্ত্ৰণ দিছিলে। कैसे तार पाছত হৈছে कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। जैसे कवयित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वैसे उनका जन्म के बारे में हम लोगों को मिला, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। वैसे कहाँ? जैसे कि राजपूताना के अंतर्गत मेरठा प्रांत के कुर्की नामक स्थान में राठौर वंश में उनका जन्म हुआ था 1498 में। वैसे तार पाছত प्रश्न আছে, भक्त कवयित्री मीराबाई को कौन सी आख्या मिली थी? कौन सी आख्या? অলপ আগতে পাইছিলোঁ। कौन सी आख्या? जैसे कृष्ण प्रेम दीवानी। वैसे कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या उन्हें मिली है। तार पाছত प्रश्न আমি পাইছোঁ যে मीराबाई के कृष्ण भक्तिपरक फुटकर पर किस नाम से प्रसिद्ध है? कौन से नाम से प्रसिद्ध है? उनकी जो फुटकर पद है किस नाम से वो प्रसिद्ध है, उसके बारे में यहाँ प्रश्न है। वैसे तो ये कौन सी नाम से प्रसिद्ध है? ये मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। अभी हम लोग को मिलेंगे। ऐसे तार पाছত আছে कि मीराबाई के पिता कौन थे? हाँ, मीराबाई के पिता के बारे में हम लोग को मिला था, जैसे कि उनके पिता राव और रत्न सिंह थे। ऐसे तार पाছত भजनों की लोकप्रियता पर प्रकाश डाला। अभी हम लोग को मिलेंगे। मीरा की जो भजन है उनकी लोकप्रियता, वो बहुत ही लोकप्रिय थे।
वैसे मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था बचपन, क्योंकि माता गुजर गए थे, पिता भी युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए उनके जो दादा है उसने ही उसको उन्हीं की देख रेख में वो बड़ा हुआ था। और तार पाছত पाइছিল যে जो कृष्ण भक्ति की जो भाव है वो किससे मिले थे, अपनी दादा से। वैसे क्योंकि वो दादा अनन्य भक्त थे कृष्ण के, तो इसलिए ये भाव उनके दादा से ही उन्हें मिली है। तार पाছত प्रश्न आइছে जैसे मेरा का देहावसान किस प्रकार हुआ था, कत হৈছিলে आमी पाइছিলো, कत হৈছিলে जे रणछोड़ जी के मंदिर में, वैसे द्वारिका धाम में रणछोड़ जी के मंदिर में 1546 के आसपास। वैसे तार पाছত से कवयित्री मीराबाई की काव्य भाषा पर प्रकाश डालो, एटी आमी चाम काव्य भाषा। वैसे तार पाছত আছে सम्यक उत्तर दो मीराबाई के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालो, उनके जीवन वृत्त उन पर प्रकाश डालना है। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनके विवाह के बारे में हम लोग को मिला, कृष्ण भक्ति भाव कहाँ से मिले थे, ही गोटेइबिलाक लिखिब লাগিব और তেওঁৰ লগতে साहित्य परिचय के बारे में। तो इसके बाद है काव्य भाषा पर प्रकाश डालो, ओके, जीवन वृत्त पर प्रकाश डालो, कवयित्री मीराबाई की साहित्य परिचय प्रस्तुत करो, तो साहित्य परिचय भी प्रस्तुत करना है। वैसे तेतियाहले आमी यात मीराबाई जी के यहाँ जो भी प्रश्न हो सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ से ही मीराबाई के जो बारे में जो दिए गए हैं यहीं से आप लोगों को लिखने होंगे। तो इसलिए आप सभी लोग ये जो मीराबाई के बारे में जो है वो अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर दें। उनकी जो साहित्य परिचय के बारे में यहाँ है, देखिए, जैसे कवयित्री मीराबाई की रचनाओं में प्रामाणिकता की दृष्टि से कृष्ण भक्ति परक लगभग 200 पद की विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तेतियाहले आमी गम पालो कवयित्री मीराबाई प्राय 200 पद आमी তেওঁৰ मूल पद हिसाबे आमी पाऊँ। यह पद मीराबाई के पदावली नाम से प्रसिद्ध है। यह पद कवयित्री मीराबाई के कृष्ण भक्तिमय हृदय के स्वतः उद्गार है। এতিয়া কি কৰে, এই যোনখিনি কবিতা, এই যোনখিনি পদ, তেওঁৰ কি হৈছে मीराबाई भगवान कृष्णर प्रति जो समर्पण भाव, সেইটো स्वतः उद्गार, সেইটো মানে কি অন্তৰৰ পৰা ওলাই অহা এটা ভাव আমি পাওঁ সেই কবিতাবিলাকত বা এই পদবিলাকত। वैसे तो उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है। तेतियाहले आमी पालो তেওঁ मूलतः हिंदी की जो उपभाषा है राजस्थानी ताते তেওঁ এই कविताসমূह लिखिছে। কিন্তু তাৰ লগে লগে কি হৈছে, परंतु उनमें ब्रज, खरीबोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिले जाते हैं। ओके, तो इनकी कविताओं में ये भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं, खरीबोली हो या पंजाबी, ब्रज। ओके, तो ये जो है इन सभी भाषाओं के शब्द भी यहाँ हम लोग को मिलते हैं। तार पाছত हुआ कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से कवयित्री मीराबाई के पद त्रिवेदी संगम के समान पावन एवं महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। तो उनके जो कविताएं हैं, उनकी कविताएं कृष्ण प्रेम माधुरी, कृष्ण भक्तिर এটা माधुरी, এটা ভাল ভাव হৈছে, सहज अभिव्यक्ति, खूब सुंदरভাৱে সাধাৰণভাৱে তেওঁ কৈ দিব পৰা, যোনটো সহজভাৱে ক'ব পৰা তেওঁৰ অভিব্যক্তি, আৰু সাংগীতিক লয়, তাত এটা সংগীতময় এটা লয় আছে, তাত এটা ৰিদম আছে, এটা আমি কি বুলি কম তাক সাংগীতিক সংগীতৰ নিচিনা গাব পৰা এটা লয় আছে তাত। वैसे और इन सभी के कारण कवयित्री के मीराबाई के जो पद हैं, इन पद को त्रिवेदी संगम, ओके, त्रिवेदी संगम के, तीन वेदों के संगम के समान पावन माने पवित्र एवं महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। वैसे तेतियाहले आमी यात पालो मीराबाईर साहित्य परिचय के बारे में। तो उनके साहित्य परिचय और ऊपर हम लोग को मिला था मीराबाई के जो जीवन वृत्तांत के बारे में, उनके जीवन के बारे में। वैसे तेतियाहले এতিয়া মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে मीराबाई জীৱনৰ বিষয়ে। मीराबाई মূলতঃ তেওঁ কি হৈছিলে, দেউতাকে যুদ্ধত ব্যস্ত হৈ থকাৰ বাবে তেওঁ ককাক দুদাজী তেওঁ চোৱা চিতা কৰিছিলে, আৰু ৰাও দুদাজী তেওঁৰ ককা কি হৈছে परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ रहते रहते बालिका मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित
होकर बढ़ने लगे। ककाक লগত আছিলে, ককাক আছিলে ভগৱান কৃষ্ণৰ অনন্য ভক্ত আৰু সেইকাৰণে ককাকৰ পৰাই সেই কৃষ্ণ ভক্তি ভাৱনাটো তেওঁৰ মনত সোমাইছিলে। তাৰপাছত আমি পালোঁ তেওঁৰ বিবাহৰ বিষয়ে, কিন্তু 7 বছৰ পাছতে তেওঁৰ যাৰ লগত বিয়া হৈছিলে তেওঁ ঢুকাইছিলে। তাৰপাছত তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে কৃষ্ণৰ ভক্তিত তেওঁ কি হয় লীন হৈ গ'ল পাইছে। আৰু তেওঁ শেষত গৈ ক'ত द्वारिकार से रणछोड़ जी के मंदिर में ही उनका देहावसान हुआ था। হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত তেওঁৰ সাহিত্য আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে আমি পালোঁ। তেনেহ'লে আমি এতিয়া এই কবিতাটোত কি আছে তাক চাম। আমি প্ৰথমতে চোৱা পদত্ৰয় আছে। तो देखो आप सभी लोग देखिए, मैं तो शरण लगी गोपाल, वैसे मैं तो शरण लगी गोपाल, जब लागी तब कौन जाने, अब जानी संसार। তেতিয়াহ'লে কি কৈছে, मैं तो शरण लगी गोपाल, मैं तो কি হ'ল मीराबाई নিজে কৈছে शरण लगी गोपाल, आपके शरण में लग गई, यानी आपके शरण में पूरी तरह से समर्पित हो गए। किसने कहा है? मीराबाई ने कहा है कि मैं तो आपके शरण में पूरी तरह से समर्पित हो गए। शरण लगी गोपाल का मतलब, गोपाल का मतलब कृष्ण, आपके शरण में पूरी तरह से मैं समर्पित हो गए। তাৰপাছত কি, जब लागे तब कौन जाने, पहले जब लागे यानी पहले, कौन जाने, किसी ने मुझे समझा नहीं। मीराबाई ने कहा है कि पहले तो किसने मुझे समझा नहीं। ओके, तो अब जानी संसार, अब तो पूरी दुनिया जान गए, समझ गए कि मैं तो आपके लिए ही बनी हूं या आप ही मेरे आराध्य हैं। पहले लोगों ने नहीं समझा इस बात को, लेकिन अब तो पूरी के पूरी संसार जान गए। कृपा कीजिए, मुझ पर आप कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए, आप मुझे दर्शन दीजिए। किसने कहा है? मीराबाई ने कहा है भगवान कृष्ण को, कृपा करो हे भगवान, मुख दर्शन दिया, सुध लीजिए, तत्काल यानी तत्काल जल्दी, जीवन पर সোনকালে सुध लीजिए, आप मेरा खबर लीजिए कि आप जिसे मुझ पर कृपा करें। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কি পালো कि मैं तो हे गोपाल हे कृष्ण, আপনার तो मैं संपूर्ण रूपे शरण, यानी मैं आपके शरण में आ गई हूँ। पहले लोगों ने इस बात को नहीं समझा, लेकिन अब तो पूरी के पूरी संसार इस बात को समझ गए। इसलिए हे प्रभु कृष्ण, आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मेरा खबर लीजिए आप। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा ने कहा हे प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्ण प्रभु कृष्ण। गिरधर नागर का मतलब गिरी को धारण करने वाला, हो गए नागर। हे प्रभु कृष्ण, सरल कमल बलिहार, आपके सरल कमल में मैं पूरी तरह से बलिहारी हो गया हूँ, यानी पूरी तरह से मैं समर्पित हो गया हूँ। सभी लोग समझ गए इस बात को? ओके, इस पद को, पहले पद को समझ गए सभी लोग? ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरे पद को। आप सभी लोग दूसरे पद को देखिए, यहाँ देखिए दूसरे जो पद है, इस दूसरे पद को देखिए, मारे घर आओ सुंदर श्याम, मारे यानी हमारे, हे प्रभु हे श्याम, हे प्रभु मारे घर आओ, हमारे घर आइए। सुंदर श्याम, श्याम का मतलब हमें मालूम है भगवान कृष्ण। तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, सुध, तुम आया बिन, तुम आए बिना, तुम आया बिन, अगर तुम नहीं आओगे, सुध नहीं मेरा, कभी भी मुझे सुख शांति नहीं मिलेंगे। पीरी पारी जैसे पान, मैं तो जो पके पान की तरह हो गया, पके पत्तों की तरह हो गया। वैसे তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম দুটা লাইনত আমি কি পালো? প্ৰথম দুটা লাইনত কি हमारे घर आओ सुंदर श्याम, हमारे घरले आहो, तो तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, तुम्हें आने, अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेंगे। तो पीरी पारे जैसे पान, मारे आशा और न स्वामी, वैसे मारे आशा और न स्वामी, यानी मैं और इंतजार नहीं कर सकता, हो गया। मैं क्या है, तुम्हारे बिना मैं सुध बुध खो चुकी हूँ। और एक तिहारे ध्यान, तो
तुम्हारे ध्यान में, यानी तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और तुम अब तक नहीं आए, तो इसलिए मैं सब कुछ यानी शोध बुद्ध खो चुकी हूँ। मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, कैसे मीराबाई कैसे मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, राशो जो मेरी मान। अब मेरा मान, मेरा सम्मान आप रख लीजिए, क्योंकि मीरा के प्रभु बेग मिलो अब जिससे कि मैं पूरी तरह से जिससे कि अधैर्य हो गया हूँ, वैसे मैं अधैर्य हो पड़ो, इसलिए आप मेरे मान को, मेरे सम्मान को रख लीजिए। देखिए इस पद में मीराबाई ने क्या है, इसे भगवान कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया है। ऐसे कि बोली से मेरे घर आओ सुंदर श्याम, हमारे घर या मेरे घर आप आइए, तुम आया बिन सुध नहीं मेरे, आपने যদি নাহে তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰো। पीरी परी जैसे पान, आपके बिना क्या है मैं पके पान की तरह हो गया हूँ, माने मैं हुकाई खिनाई গৈছো। ऐसे मेरा आशा और न स्वामी, मैं আৰু মানে কি ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰা, আশা और न स्वामी, मैं আৰু আশা কৰি থাকিব নোৱাৰো, আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে আহক। ऐसे एक तिहार ध्यान, आप ही मेरे लिए सब कुछ। তেতিয়াহ'লে কি কৈছে मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, मैं এতিয়া বেগ মিলো अब, मैं অধৈৰ্য হৈ পৰিছো। ऐसे बेग मिलना माने गति, माने मैं पूरा अधैर्य हो परिसो और राशो मेरी मान, आप मेरी मान सम्मान, कौन सी मान, भगवान अपने भक्तों को जिस प्रकार से भक्तों की मर्यादा देते हैं, उसी तरह से आप मेरा जो मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, इसलिए मेरे सम्मान को, मेरे मान को आप रक्षा कीजिए, आप मेरे घर आइए। ओके, तार पाছত हमें जो तो तीसरे जो पद है, तीसरे पद को अब हम देखेंगे। यहाँ देखो, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। देखिए हमें याद मीराबाई কৈছে যে राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम तो आप पीबले কৈছে, तारमाने कि राम नाम लबले কৈছে। या ठीक ये जो राम नाम, ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं है, तो ये राम कौन है, भगवान कृष्ण, याद रखना। राम शब्द तो व्यवहार कैसे कि तो या राम কোন, राम सीता, सीता राम নহয়, দশৰথৰ পুত্ৰ राम নহয়, এই राम হৈছে भगवान कृष्ण। এটা राम नाम रस पीजे मनवा, मनवा माने कि मनुष्य, आप राम नाम ले कृष्ण का नाम आप पीजे, पी लेना, यानी राम भगवान कृष्ण नाम लबले কৈছে, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग, तज तज माने त्याग কৰা, কি ত্যাগ কৰিবলৈ কৈছে, কুসংগ, বেয়া সংগতিবিলাক त्याग কৰিব কৈছে। सत्संग बैठ नित हरि सरसा सुन लीजिए, তেতিয়াহ'লে বেয়া সংগতি এৰি সদায় সৎ সংগত থাকি बैठे सत्संग बैठे नित, नित माने সদায় কি কৈছে, हरि सरसा सुन लीजिए, हरि सरसा ভগৱানৰ গুণগান, কৃষ্ণৰ গুণগান ল'বলৈ কৈছে, গাবলৈ কৈছে। काम क्रोध मद लोभ मोह को, তেতিয়াহ'লে কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ এই সকলোবিলাক কি কৈছে, बहा सित सो दीजे, सित सित माने मन, मनर পৰা কি বুলি কৈছে, বহাই দিব কৈছে, মানে কি উলিয়াই দিবলৈ কৈছে, কি বেয়া অৱগুণবিলাক, কোনবিলাক কাম ক্ৰোধ মদ লোভ মোহ এই সকলোবিলাক মনৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ কৈছে। वैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है, कृष्ण है। ताही के रंग में भीजे, ताही के, उन्हीं के, किसके, भगवान कृष्ण के रंग में भीजे, यानी भगवान कृष्ण के भक्ति तरह से, भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाने के लिए यहाँ कवयित्री ने इस पद में कवयित्री ने कहा है। ओके, तो मैं समझता हूँ ये जो कविता के जो भावार्थ हैं ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ जो इसके जो अर्थ हैं, इस पदों के अर्थ को जैसे कि आप लोगों के पुस्तक में यहाँ दिए गए हैं, तो इन पदों के अर्थ को आप सभी लोग समझ लीजिए। तो इस पद को जैसे कि मैं जिस तरह से समझाया, आप लोगों को एक एक शब्दों के अर्थ को मैंने समझाया, उन शब्दों को अर्थ को समझकर आप इनके जो भावार्थ हैं, हर एक पद के जो भावार्थ हैं, इन पदों के भावार्थ को आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लें।